Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Shalom. शालोम। I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I'm very much glad to come in front of you all with this program. और एक बार से फिर मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर इस कार्यक्रम के साथ Learn Hebrew. लर्न हिब्रू। I give all glory and honor और मैं सारी आदर और सारी महिमा to our Almighty God. हमारे महान परमेश्वर को देता हूँ। It is just because of His loving kindness and of His mercies और ये केवल उसकी प्रिय दया के कारण और उसकी कृपा के कारण है that I am able to come in front of you all in order to teach this biblical language. कि मैं आप सबके सामने आ सका हूँ ताकि आपको बाइबल की भाषा को सिखा सकूं। Well, also I give thanks for all the viewers और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ for your interest in watching this program and learning the biblical language. और आपकी जो दिलचस्पी के लिए इस कार्यक्रम को देखना और इस भाषा को सीखने के प्रति। Even I thank for the people, those who have sent me of their suggestions and feedbacks about the program. और धन्यवाद करता हूँ उन सभी दर्शकों का जो मुझे अपने सुझाव को अपने फीडबैक को भेजते हैं इस कार्यक्रम के प्रति। Even watching these programs, the early episodes in YouTube, and even giving us your comments and your suggestions even in YouTube also. और धन्यवाद करता हूँ उन सब के लिए जो कि शुरुआती कार्यक्रमों को YouTube के द्वारा देखते हैं और अपने सुझावों को और अपने जो कमेंट को हमें भेजते हैं। May the Lord continuously bless you all. और परमेश्वर लगातार आपको आशीष करता And रहे। this is my prayer and my desire that you need to enrich yourself in the knowledge of God's word. और यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी इच्छा है आपके लिए कि आप परमेश्वर के वचन में आगे और आगे बढ़ते जाएं। Well, we have been learning about, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं we have been learning about the biblical concept of sin. कि पाप के लिए बाइबल की क्या विचारधारा है। So it is the concept of sin in the Bible. और बाइबल जो पाप के विषय में क्या कहती है। As I told that there are 8 different words in the Hebrew language which are used for the word sin. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाइबल में 8 अलग शब्द है जो कि पाप के लिए उपयोग किए जाते हैं। And by the grace of God we have learned the 4 words which we call for sin in Hebrew language. और परमेश्वर के अनुग्रह से अब तक हमने 4 शब्दों को सीख लिया है जो कि इब्रानी भाषा में पाप के लिए उपयोग किए जाते हैं। The first one that we have learned और जो पहला हमने सीखा था is the word that we have learned for sin is kata. और जो पहला हमने शब्द देखा था वो था कटा। Kata, कटा which means और जिसका अर्थ है it is miss the mark कि अपने जो निशाने से चूक जाना or miss the target. और अपने जो उद्देश्य से खो देना। What God have set in front of us and we fail to do it or we fail to keep that. और परमेश्वर ने जो हमारे सामने रखा उसे हम करने में जो नाकाम हो गए। And the second word और जो दूसरा हमने देखा था it is the evil or bad. और जिसका अर्थ है कि बुराई या बुरा। Evil or bad. बुराई या बुरा। This is a word which is used in the adjective form. और ये वो शब्द है जिसे कि विशेषण रूप में उपयोग करते It's हैं। a bad thing और जिसका अर्थ है कि बुरी बात or evil thing और या बुरी चीज। that you do the thing which is against to God. और वो बातें आप करते हैं जो कि परमेश्वर के विरोध में हो। And then the third word और जो तीसरा शब्द था that we have learned is the third word that we have learned is pesha. और जो तीसरा शब्द हमने देखा था वो था पेशा। Pesha, पेशा it is to rebel against God. और जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करना। It is to revolt to the standard of God. और परमेश्वर के स्तर के खिलाफ जो विद्रोह करना। And then the fourth word that we have learned और जो चौथा शब्द हमने सीखा था
The word that we have learned is avan. और जो चौथा शब्द हमने सीखा था वो था अवन. Avan, अवन, which is iniquity और जिसका अर्थ है कि अधर्म या अन्याय or trespass और या फिर अपराध, गुनाह or transgression. और जो अपराध. So this is the word that we have learned in the last episode. और ये वो शब्द हैं जो कि हमने पिछले कार्यक्रम में सीखे थे. It is about the biblical concept of sin. और ये है कि पाप के बारे में बाइबल क्या कहती है. So the word sin, but it falls with the different meanings. और ये जो पाप शब्द है इसके जो अंदर कई और शब्द आते हैं. It is kata, और वो है कटा. kata which means sin. और कटा जिसका अर्थ है कि पाप. So the sin means it is about miss the mark. और जो पाप का अर्थ है कि अपने निशाने से चूक जाना. And the second is ra. और जो दूसरा है वो है रा. Ra, which is an evil person or evil thing. और जो रा उसका अर्थ है कि बुरा व्यक्ति या बुरी चीज. Or bad, और या फिर बुराई. which is again in an adjective form. और फिर से ये उसी प्रकार से विशेषण रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं. And then we have seen as pesha, और फिर हमने देखा था पेशा, which is to rebel against God. और जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करना. It is rebellion. और इसका अर्थ है कि विद्रोह करना. And then the fourth word, और जो चौथा शब्द था it is avan. और वो है अवन. Avan, iniquity, और जिसका अर्थ है कि अधर्म. or knowingly or unknowingly that you do the sin. और जाने और अनजाने में आप पाप करते हैं. It is that you trespass or transgression. और आप अपराध या गुनाह करते हैं. So let us learn today the fifth word, what is used for the word sin. और अब हम आगे बढ़ते हैं और पांचवें शब्द को देखते हैं कि पाप के लिए पांचवा शब्द कौन सा है. The fifth word that we are going to learn और जो पांचवा शब्द हम सीखेंगे for the biblical concept of sin. और पाप के बारे में बाइबल की क्या विचारधारा है. Can you able to read this one? और क्या आप इसे पढ़ सकते हैं. This is guilt और ये है जो दोष or guilt offering. और या फिर जो दोष बलिदान. It is guilt or guilt offering. और ये है दोष या दोष बलिदान. The word for guilt which is used in the Bible, और जो बाइबल के लिए उपयोग किया गया है दोष के लिए जो शब्द in the Hebrew language, इब्रानी भाषा में, it is as और वो है aleph, और ये है आलेफ which is silent, और जिसका कोई आवाज नहीं. and then kamex, और फिर कामिक which is a, जो कि है ए. sheen, शीन which is sh, और जो कि है ऐसे. then again kamex, और फिर कामिक्स and then final form of mem, और मैम की फाइनल फॉर्म asham, अशाम. asham, अशाम which means guilt और जिसका अर्थ है कि दोष or guilt offering. और या फिर जो दोष बलिदान. And this is the word which is used in masculine noun gender. और ये जो पुल्लिंग एक वचन संज्ञा में उपयोग किया जाता है. So it is a masculine gender. और ये है जो पुल्लिंग शब्द. In fact, this is the word where we see even used in the adjective sense. और इसे जो विशेषण रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है. But guilt or guilt offering, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दोष या दोष बलिदान. the Hebrew word for this is asham. और जो इब्रानी भाषा में उसके लिए शब्द है वो है अशाम. How it is? और कैसे है ये. Aleph, आलेफ. under aleph और आलिफ के नीचे there is a kamex, और वो है कामिक्स. and then sheen, और फिर शीन and then kamex, और फिर कामिक्स. and then final form of mem. और मैम की फाइनल फॉर्म. And the meaning that we get, और इसके जो अर्थ को हम पाते हैं. the meaning that we get about this asham, अशाम से जो अर्थ हम पाते हैं it is guilt और वो है दोष or offense और अपमान या अपराध. it is guilt or offense और ये है जो दोष, अपमान or accused
और या फिर दोष लगाना, So it is a guilt or offense or accused. और इस तरह हम इसे कहते हैं कि दोष, अपमान या फिर दोष लगाना। And when we see about this word, और जब हम इन शब्दों को देखते हैं, particularly when I say the word sin, और खास तौर से जब मैं कहता हूँ शब्द पाप, so the sin, when we say about this one, और जब हम कहते हैं पाप, so it is about that you are personally, you fail to keep what God commanded you. और आप व्यक्तिगत रूप में उन चीजों को करने में नाकाम हो गए जो कि परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा था। Are you with me? और क्या आप मेरे साथ हैं? What is sin? और पाप क्या है? Sin is a personal thing that you do where you fail to keep the command of God. और जो व्यक्तिगत रूप में आप उन आज्ञाओं को पालन करने में असफल हुए जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा था, And that is called as sin. और उसे कहा जाता है पाप। But now when we come to this word guilt, और लेकिन जब हम यहाँ पे इस शब्द दोष को देखते हैं, so when we say about this word guilt, which is asham in the Hebrew language, और जब हम यहाँ पे देखते हैं जो दोष शब्द जो कि इब्रानी भाषा में उसे कहते हैं अशाम, it is to say as और इस तरह से हम कहते हैं indebtedness, which means that you cause others to commit sin. और आप इसका कारण बनते हैं कि दूसरे पाप करें, It is you cause others to commit sin. और दूसरे जो पाप करते हैं उसके लिए जो आप कारण बनते हैं। See, when I say the word sin, और जब मैं कहता हूँ पाप, okay, when I say the word guilt, और जब मैं कहता हूँ दोष, sin पाप, is personally you fail to keep the commandment of God. और व्यक्तिगत रूप में आप फेल हो गए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में। But guilt लेकिन जो है दोष, is that you cause other to commit sin. और आप इसका जो कारण बने कि दूसरे पाप करें। For an example, और उदाहरण के लिए, if you read in the Bereshit chapter 20, और यदि आप पढ़े उत्पत्ति अध्याय 20 को, or if you read in Bereshit chapter 26, और यदि आप पढ़े उत्पत्ति अध्याय 26 को, in these two chapters और इन दो जो अध्यायों में where we read about, और हम वहाँ पे पढ़ते हैं, here in Genesis chapter 20, और यहाँ पे उत्पत्ति अध्याय 20 में, there we see about Abraham, और वहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम, Sarah, सारा, and they both went to Egypt. और वो दोनों जो मिस्र में गए, And there we see that Abraham told to this about Sarah as his sister. और वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने सारा को अपनी बहन बताया, And then the king, he took Sarah for him. और इस तरह से हम देखते हैं कि राजा ने वहाँ पे जो सारा को अपने लिए लिया, But God preserved Sarah from that sin. लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे सारा को उस पाप से बचाया। And even if you read in chapter 26, और यदि आप पढ़े उत्पत्ति अध्याय 26 को, there we read about Isaac and Rebekah. और वहाँ पे पढ़ते हैं हम इजहाक और रबेका के बारे में, And we know that even Isaac also told to this king Abimelech Rebekah as his sister. और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो इजहाक ने अबीमेलेक राजा से कहा कि जो रबेका है वो उसकी बहन है। And then we see that और वहाँ पे हम देखते हैं he took Rebekah as his wife. और वहाँ पे वो रबेका को अपनी पत्नी के रूप में लेता है। And then we see that when he came, when he saw Isaac and Rebekah both were playing, and then the king came and told that what the guilt that you have brought upon us. और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब उस राजा ने देखा कि जो इजहाक और रबेका उससे जो खेल खेल रहे हैं तो उसने उन्हें कहा कि आपने ये दोष मेरे ऊपर क्यों लेके आए। So that is what we see that this Abimelech went and said. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजा अबीमेलेक था वो गया और उसने कहा, He went and said that you brought Asham upon me. और उसने उन्हें कहा कि आप मेरे ऊपर अशाम को लेके आए हो। Because of that we knew that God closed the womb of the Abimelech's wives and concubines and the servants of those people. हम देखते हैं कि अबीमेलेक के राज्य की सारी औरतों की कोख को परमेश्वर ने जो बंद कर दिया, उसकी पत्नी, उसकी दासियां और सभी औरतों की, Because क्योंकि this Abimelech took Rebekah
to be his wife. क्योंकि अबीमेलेक ने रबेका को अपनी पत्नी के रूप में लिया And where Isaac told that she is as my sister. और आइजक ने कहा कि ये मेरी बहन है। And later we knew that Abimelech came and said that this is the guilt or asam that you have brought upon me. और हम देखते हैं कि अबीमेलेक उनसे कहता है कि आप मेरे ऊपर अशाम को, मेरे ऊपर दोष को लेके आए हो। So that's what guilt means. Asam means that where you become a cause for others to commit sin. और जो इस तरह हम देखते हैं कि जो दोष का जो अर्थ है कि आप जो कारण बनते हैं किसी को गुनाह करने के लिए, पाप करने के लिए, And you makes other to commit sin. और आप जो दूसरों को गुनाह करने के लिए मजबूर करते हो। And we know that. और हम जानते हैं And God is very serious about that. और परमेश्वर इसके प्रति बहुत ही जो सीरियस है। And we know that even this is the word asham, even it is connected to the guilt offering. और ये जो अशाम शब्द है ये जो दोष बलि के साथ भी निर्धारित है। We know that. और हम जानते हैं in the book of Leviticus. और जो लेवी व्यवस्था की किताब में If you read chapter 5. और यदि आप पढ़े उसका अध्याय 5 को। Or if you read chapter 6. और यदि आप पढ़े अध्याय 6 को। And even if you read the chapter 7. और यदि आप पढ़े अध्याय जो 7 को। Even if you read the book of Numbers chapter 5. और यदि आप पढ़े गिनतियों की किताब अध्याय 5 को। There we see about this guilt offering. और वहाँ पे हम इन निर्दोष जो बलिदान को देखते हैं। And the same word that is used for guilt offering is asham. और इसी प्रकार से ये जो शब्द अशाम उपयोग किया गया है निर्दोष बलि के लिए। There we see in the guilt offering. और हम वहाँ पे देखते हैं दोष बलि। If a person committed sin. और यदि एक व्यक्ति पाप करता है। And that person have to bring an offering. और वो एक बलिदान को लाता है। Or that he have to sacrifice something on behalf of his sin. और वो अपने पाप के लिए वहाँ पे कुछ बलिदान करता है। And we see that a leper and Nazarene. और यदि एक कोढ़ी या फिर एक नजराइन when they bring their offering, और जब वो अपनी जो बलि को लाते हैं, they bring the guilt offering, और वो दोष बलि को लाते हैं, and they bring the lamb, और वो एक जो मेमने को लाते हैं for the offering. और चढ़ावे के लिए। And if there is a dispute between the neighbors, और जो पड़ोसी के बीच में जो झगड़ा होता है, and that time to establish the peace, और उनके बीच में जो शांति को स्थापित that करने they के have लिए, to offer the blood and the pieces to the priest, और वो जो पुरोहित के सामने लहू और जो मांस के टुकड़ों को चढ़ाते हैं, where their sins are transferred into animal. और जो वो पाप है वो जानवर के ऊपर चला जाता है। So it is the transfer of their sins. और वो अपने जो पाप को उसमें जो भेज देते हैं। And even we knew that. और हम जानते हैं। If you read in the book of Isaiah. और यदि आप पढ़े यशाया की किताब को, chapter 53 verse 10, और उसका 53 का 10 को, and then Mark chapter, और मरकुस अध्याय 10:45, और 10 का जो 45 को, that Jesus Christ became a guilt offering for us. और यीशु मसीह हमारे लिए दोष बलि बन गया। He offered himself, and we know that his death is a sacrificial or a substitutionary death. और वो हमारे लिए बलिदान हुआ, और हम जानते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा, और उसका जो बलिदान हमारे लिए था। So it is a ransom that he came to pay the ransom for many. और वो जो हमारे पापों के बलिदान के लिए आया। So he came to pay the cost of our sin. और वो जो आया ताकि हमारे पापों का मूल्य चुका सके। So my dear viewers, और मेरे प्रिय दर्शकों, the word that is used, the biblical concept of sin is the word guilt that we read in the Bible. और जो पाप के लिए बाइबल की क्या विचारधारा है उसमें हमने देखा शब्द जो दोष को, the word guilt or guilt offering, और जो शब्द दोष और दोष और बलिदान को, it is asham. और इब्रानी में उसे कहते हैं अशाम। Asham means guilt or offense or accused. और जो अशाम का अर्थ है कि दोष, अपमान और जो दोष लगाना। And where you cause others to commit sin. और यहाँ पे आप दूसरों को पाप करने का कारण बनते हैं। Where you brings a trouble in the life of other person. और आप दूसरे के जीवन में मुश्किल को लाने का कारण बनते हैं। Where, as I said about Abraham and Sarah. और जैसे कि मैंने आपको बताया अब्राहम और सारा के बारे में। Where I said about
to say that where I said about Isaac and Rebekah, और मैंने आपको बताया इजहाक और जो रेबेका के बारे में, and even that we see in the Bible, in the Old Testament, we see about different characters that who became a cause for others to commit sin. और बाइबल में हम कई और जो व्यक्तियों को देखते हैं जो कि दूसरों के लिए पाप का कारण बने, And that's what on the Lord's Prayer, और जो प्रभु की प्रार्थना में, and there we see that Jesus Christ have taught us. और वहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, It is forgive our debts as we forgive our debtors. और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते So हैं, it is to forgive our debts और as हमारे we forgive our debtors. और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते So हैं, that's what it is, the indebtedness. और ये है जो इंडेप्टनेस, So it is where you cause others to commit sin. और यहाँ पे आप जो दूसरों को पाप करने का कारण बनते And हैं, we know that, और हम जानते हैं, and for even especially when you read in the book of Romans, और यदि आप पढ़ते हैं रोमियो की किताब को or in the chapter 13 and 14, और उसका अध्याय 13 और 14 and में, even if you read in the 1 Corinthians chapter 8, और यदि आप पढ़े पहला कुरिन्थिया उसका अध्याय 8 को, what will be the consequence that when you become a stumble for other Christian और for committing sin. और क्या जो उसके नतीजे होते हैं जब आप दूसरों के लिए पाप का कारण और हठीले बनते हैं। It is, I'm not going to say about what will be the consequence, और मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि इसके क्या जो नतीजे हैं, but I want you to read Romans chapter 13 and Romans chapter 14. और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े रोमियो अध्याय 13 को और रोमियो अध्याय 14 को, And I want you to read 1 Corinthians chapter 8 and find the answer what happens if I become a stumble block for other believer. और यदि आप पढ़े और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े पहला कुरिन्थिया अध्याय 8 को, और यदि आप दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं तो उसके नतीजे क्या होते हैं, And you find out the answer. और आपको वहाँ पे जो उत्तर मिलेगा। And the Bible says और बाइबल कहती है that we should not sin और हमें जो पाप नहीं करना चाहिए, and we should not become a cause for others to commit sin. और हमें इसका कारण भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे हमारे कारण पाप में गिरें। It is not that that's what we have to be very much careful about our dressing, we have to be very much careful about our behavior and everything in our life. और इसीलिए हमें बहुत ही जो जागरूक रहना है अपने कपड़ों के बारे में, अपने जो व्यवहार के बारे में, How you adorn yourself, और कैसे आप अपने आप को दिखाते हैं, how you get ready of yourself, and when you go to the people, is it that you are in a decent look or you are becoming a cause of others to commit sin. और यदि आप जो तैयार होते हैं तो क्या आप जो सही रीति से हैं या फिर आपके तैयार होने से दूसरे जो पाप में गिरते हैं। Because the Bible says even when you see with a lustful eyes, then you are committing sin. और बाइबल हमें बताती है कि यदि आप अपनी आंखों से भी बुरी निगाह से देखते हो तो आपने पाप कर लिया। So I hope that you understood what is guilt and the guilt offering. और मैं समझता हूँ कि आप जान पाए होंगे कि क्या है ये दोष और दोष बलिदान। Guilt, दोष what it is? और क्या है ये? It is offense और ये है ऑफेंस or accused, और अपमान या फिर जो दोष लगाना, where it is that you cause others to commit sin. और आप बनते हैं दूसरों के लिए पाप का कारण। It is sin पाप, where you personally fail to keep the command of God. और पाप का अर्थ है कि जब आप व्यक्तिगत रूप में उन आज्ञाओं को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है। But guilt, और जो दोष है where जहाँ पे you become a cause others to commit sin. और जहाँ पे आप कारण बनते हैं दूसरों को पाप करने के लिए। And we know that और हम जानते हैं it is not right. और ये सही नहीं है। It is not right that we to become a cause for others. और ये बात सही नहीं है कि हमारे कारण जो दूसरे पाप में गिरे। And then we see about that. और हमने यहाँ पे देखा It's about the guilt offering. और ये है जो दोष बलि, Wherein in the Leviticus chapter 5, और लय व्यवस्था अध्याय 5 में, chapter 6 and chapter 7, और उसका अध्याय 6 और अध्याय 7 में, and also Numbers chapter 5, और गिनती अध्याय 5 में, where a sinner commits sin
and he comes and offer, and his sins are transferred upon the animal. और जब एक पापी पाप करता है तो वो एक जो जानवर को लाता है और जो उसके पाप है वो जानवर के ऊपर आ जाते हैं. It can be ram, और वो जो मेमना हो सकता है, or it can be lamb. और वो जो भेड़ का बच्चा हो सकता So है. it is that where he keeps his hand and all his sins are transformed into that animal, and that animal is sacrificed. और वो अपने हाथ को उस जानवर के ऊपर रखता है और उसके जो सारे पाप है उसके ऊपर आते हैं और फिर जो उस जानवर का बलिदान किया जाता है. In the same manner और इसी प्रकार से that Jesus Christ came और यीशु मसीह आए as our substitute. और हमारे बदले में, Instead of we die, और हम जो मरना था, instead of we suffer, और हमने जो दुख उठाना था, instead of we supposed to be nailed, और हमारे जो कीले ठोकी जानी थी, instead of we go to hell, और हम जो नरक जाना था, and that all things were bore by our Lord Jesus Christ. लेकिन सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उठा लिया So गया. that's the reason और यही कारण है we have to say forgive our debts as we forgive the debts of our debtors. और इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं. So see your lifestyle and see yourself that you may not become a cause for others to commit sin. और अपनी जीवन शैली को देखें ताकि आप किसी के लिए पाप में गिरने का कारण ना बन सकें. As Abraham and Sarah were, और जिस तरह सारा और अब्राहम ने किया, as Isaac and Rebekah were. और जिस प्रकार से जो इसहाक और रेबेका ने किया, Don't be like that. और उस प्रकार से ना बनिए. Don't bring a judgment of God upon somebody's life, और जो परमेश्वर के न्याय को किसी के ऊपर ना लाएं, but rather और इसके बदले live a holy and pure life, a life which God desires from us. और एक पवित्र और एक शुद्ध जीवन को जिए जो कि परमेश्वर हमसे इच्छा करते हैं. If you have any suggestions and feedbacks, और यदि कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक आपके पास है, you can send to the number that you see on screen. और स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप भेज सकते You हैं. can call to me and talk to me directly. और आप मुझे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं. And if you want to give us any suggestions, और यदि आप कोई भी जो अपने सुझाव को देना चाहते हैं, you can send through WhatsApp or SMS. और आप व्हाट्सएप के द्वारा, SMS के द्वारा हमें भेज सकते हैं. Continuously watch this program और लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें and keep us in your prayers, और अपनी प्रार्थना में हमें याद रखें. and even watch these programs in YouTube. और YouTube के द्वारा भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते May हैं. the Lord continuously bless you all and be with you all. और परमेश्वर लगातार आपके साथ हो, आपको आशीष दे. Shalom. शालोम. Tau Torah.